ओके, स्टार्ट कर दिया। तो ये पेपर लेना मुझे। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल मैथ्स 3 यूनिट 1 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये जो यूनिट है इसमें कुछ पार्ट डिफिकल्ट मिलेंगे, कुछ सम डिफिकल्ट मिलेंगे, कुछ सम सिंपल मिलेंगे। तो मैं सजेशन दूंगा कम से कम सीएफ तो भी निकाल लेना। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सम सिंपल होते हैं, शॉर्टकट के सम जनरली टफ होते हैं। तो भी मैं आपको ये सम करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप, वी रिप्लेस कैपिटल डी को डी बाई डी एक्स। तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 3 डी वाई प्लस 2y ई रेस टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। जो बच्चों को यूनिट 1 अच्छा आता नहीं, उन्होंने यूनिट 2 से शुरू करना और यूनिट 1 में खाली सीएफ करके आना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और होमोजेनियस, इतने टॉपिक करो। यूनिट 2 बहुत आसान है। यूनिट 2 में 3 टॉपिक करना है, वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। और यूनिट 1 से जितना होगा उतना करिए, आपको सजेशन दे रहा हूं। अब यहां पर y इज कॉमन, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 is e raised to x into cos x, cos hyperbolic x. First step, auxiliary equation is, first step, auxiliary equation is d square minus 3d plus 2 is 0. कैलसी से निकालोगे, d is equal to 1 2. First case, what is complementary function is yc c1 e raised to 1x plus c2 e raised to 2x. What is complementary function is yc is c1 e raised to 1x plus c2 e raised to 2x. Second step, pi. Second step is pi. What is the formula for pi? 1 by f of d operates on f of x. बोलो f of d क्या होगा, d square minus 3d plus 2, and what is f of x is e raised to x cos hyperbolic x, cos hyperbolic x. अब यहां पर e raised to x into v का टाइप भी आता है। या मैं यूज करता हूं value of cos hyperbolic is definition e raised to x plus e raised to minus x by 2, definition of hyperbolic function. तो मैं ये वैल्यू रख देता हूं, तो ये होगा 1 by d square minus 3d plus 2 e raised to x. ये क्या होगा, e raised to x plus e raised to minus x by 2. तो 1 by 2 कांस्टेंट बाहर, d square minus 3d plus 2 e raised to x into e raised to x plus e raised to x into e raised to minus x. तो ये आ जाएगा 1 by 2 1 upon d square minus 3d plus 2 e raised to x e raised to 2x, e raised to 0 is 1. Base same addition of power, x minus e raised to 0 1, base same addition of power 2x. अब इस सेपरेट करिए, 1 by 2 1 upon d square minus 3d plus 2 e raised to 2x. अब आप 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 by d square minus
3d प्लस 2, 1 को हम e रेस टू 0x लिख पाओगे. 1 इज रिटर्न एज e रेस टू 0x. अभी d की जगह 2 रखो. I replace d is equal to 2. Here I replace d is equal to 0. जब आप 2 रखोगे तो ये आ जाता है 1 by 2, 1 upon 2 square, d replaced by 2. 2 square is 4 minus 3 into 2 is 6 plus 2 e raised to 2x. d replaced by 0, 0 square 0, 3 into 0 0 plus 2 e raised to 0 is 1. तो यहां पर 0 आ जाता है. यहां पर क्या आ जाता है बच्चों लोग? 1 by 2 as it is. 1 by 0 e raised to 2x plus 1 by 2. जब डिनोमिनेटर में 0 आया, it is called as case of failure. It is called as case of failure. How to solve case of failure? Multiply by x. Multiply by x. Take derivative. d square का डेरिवेटिव 2d minus 3 e raised to 2x. डेरिवेटिव ऑफ d square 2d minus 3 और ये आ जाएगा हाफ. Now replace d equal to 2 again. d replaced by x का कोएफिशिएंट. d replaced by कोएफिशिएंट ऑफ x. d replaced by कोएफिशिएंट ऑफ x. तो ये आ जाता है 1 by 2 x 1 by 2 into 2 4 minus 3 that is 1 e raised to 2x plus half. यहां पर करोगे तो 4 minus 3 आता है. तो what is the answer? 1 by 2 x by 1 e raised to 2x plus half. This is pi. And what is last step? General solution is CF plus pi. That is y is equal to, what is CF? C1 e raised to 1x plus C2 e raised to 2x और pi 1 by 2 x e raised to 2x plus half. तो बच्चों लोग, मैंने ये सम ऐसे बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने रेगुलर क्लास किया हुआ है. जो बच्चे ने रेगुलर क्लास किया है उनको ऐसे बड़े सम करने की आदत है. और जो बच्चों को गैप ज्यादा हुआ है, आप लोग क्या करा बच्चे लोग, जस्ट CF निकाल के आना. जस्ट CF निकाल के आइए और जितना होता है उतना देखो कितना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है. ओके, तो ये सम इस टाइप से किया जाता है. शॉर्टकट मेथड का सम था. सेकंड सम, d square y by dx square plus y is equal to x square plus 1. This is again some shortcut method. I replace d equal to d by dx. तो ये आ जाएगा बच्चे लोग d square y plus y is x square plus 1. y is common, d square plus 1 into y is x square plus 1. And it is f of d into y is equal to f of x. First step, auxiliary equation is. First step, auxiliary equation is. What is auxiliary equation? d square plus 1 is 0. So what is value of d is minus plus minus I plus minus 1i. तो इसे लिखा जाएगा 0 plus minus 1i. केस नंबर 3 कॉम्प्लेक्स वाला केस आएगा. बहुत जगह पर आपको ये तो बेसिक ये तो आना चाहिए. जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो e raised to 0x c1 cos 1x plus c2 sin 1x. बच्चों कॉम्प्लेक्स रूट होगा e raised to 0x c1 cos 1x i का कोएफिशिएंट प्लस c2 sin 1x. तो जो बच्चों ने रेगुलर पढ़ा होगा उनको बहुत सिंपल लगेगा. सिंपल समय, ये सब बहुत डिफिकल्ट नहीं है. स्टेप नंबर सेकंड, पीआई का फॉर्मूला बोलो. व्हाट इज फॉर्मूला वैल्यू ऑफ पीआई इज 1 by f of d operates on f of x. What is f of d? d square plus 1. What is f of x? x square plus 1. अभी टाइप आ रहा है 1 upon f of d operates on equation in powers of x. Equation in powers of x. What is the type? Take constant term is common from denominator. Take constant term is common from
डिनोमिनेटर, ये टाइप फिक्स है तो आप 1 कॉमन निकालो, इट इज डी स्क्वायर प्लस 1, आई टेक 1 इज कॉमन, अगर 10 होता तो 10 कॉमन लेते, 2 होता 2 कॉमन लेते, ये प्रोसेस है शॉर्टकट टाइप 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेट्स ऑन इक्वेशन इन पावर्स ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेट्स ऑन इक्वेशन इन पावर्स ऑफ, तो यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस वाई एडजस्ट हो रहा है, बहुत सिंपल सम है, एडजस्ट हो रहा है बच्चे लोग, 1 अपॉन 1 प्लस वाई, व्हाट इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में प्लस होगा अल्टरनेट प्लस माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 माइनस वाई मतलब डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर का स्क्वायर, एंड दिस ऑपरेट्स ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब डिनोमिनेटर प्लस होगा अल्टरनेट प्लस माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस होगा तो सारे प्लस, y की जगह पर आपने डी स्क्वायर रख दिया, अभी मल्टीप्लाई करो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू दिस टर्म माइनस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाद में डी रेज टू 4 ऑपरेट्स ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, मैंने क्या किया टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, डबल डेरिवेटिव इज 2 और 4 डेरिवेटिव इज 0, क्यों आपको ये वैल्यू मालूम है, f अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं, व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव इज 2x, व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव इज 2, इससे पहले सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म क्या लिखा 2 लिखा, वो 4 डेरिवेटिव 0 आएगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इससे बड़े 0 का, सो व्हाट इज द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज पी आई, एंड व्हाट इज लास्ट स्टेप इज डियर स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, सो व्हाट इज वाई सी एफ इज, ये आपको मालूम है C1 cos x plus C2 sin x and pi is x square minus 1. In this way we get the answer. तो काफी अच्छा सम था, सिंपल सम था बच्चों, सिंपल सम था, सिंपल सम था. नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सम. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सम जनरली बच्चे इजीली कर पाते हैं और प्रेफर करना चाहिए. सो हियर वी रिप्लेस कैपिटल डी को टू डी बाई डी एक्स. तो ये क्या आ जाएगा बच्चे लोग, डी स्क्वायर वाई प्लस 4y इज सेक टू एक्स, y इज कॉमन, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज सेक टू एक्स. फर्स्ट स्टेप बोलो व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, y के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करोगे, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 4 इज 0, डी स्क्वायर प्लस 4 इज 0. तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i, इसे लिखा जाएगा 0 प्लस माइनस 2i. बोलो व्हाट इज वाई सी, सी एफ इज e रेज टू 0x, e raised to 0x, C1 cos 2x plus C2 sin 2x, e raised to 0x, C1 cos 2x plus C2 sin 2x. Second step, pi is of the form, pi is of the form. तो यहां पर जो इसे हम ऐसा लिखेंगे, e raised to 0x is 1, C1 cos 2x plus C2 sin 2x. So it is of the form C1 y1 plus C2 y2. C1 coefficient y1 लोगे, we take coefficient of C2 as y2. बोलो what is coefficient of C1 is y1, coefficient of C2 is y2. तो यहां पर pi में क्या करोगे आप, C1 replaced by u and C2 replaced by v,
and both are functions of x to be determined, where u and v are function of x to be determined. To be determined. तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सम में कभी भी CF is of the form C1y1 plus C2y2 होता है. And what is the method for PI? C1 C2 replaced by U and V. Now to find U and V, why we replace C1 C2 by U and V? Because PI is without arbitrary constant. CF is with arbitrary constant. तो PI में arbitrary constant नहीं होता, and hence I replace C1 C2 by U and V. Last part is to find U and V. So for that we find W. First find W, that is called as y1 y2 y1 dash y2 dash. What is value of y1? Coefficient of C1 is y1, which is cos 2x. y2 is coefficient of C2 is y2, that is sin 2x. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना. sin का डेरिवेटिव cos, x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए. नाउ व्हेन वी सॉल्व डिटरमिनेंट, आप डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करोगे? ये मल्टीप्लिकेशन माइनस ये मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहां पे y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश. तो बच्चों लोग ये आएगा 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x. 2 cos स्क्वायर 2x plus sin स्क्वायर 2x. And what is sin square theta plus cos square theta is 1. So 2 into 1 is 2. Overall ये आपको क्या आ जाता है बच्चों लोग? 2 into 1 and which is 2. Cos square theta plus sin square theta is 1. Now once we get W, आप लोग रिप्लेस करोगे U में. What is formula for U? Integration of minus y2 f of x upon w dx. y2 का कोएफिशिएंट माइनस लेना है. क्यों? यहां पे y2 का कोएफिशिएंट माइनस है. और दूसरा आंसर क्या रहेगा? v. v आप कैसे निकालोगे? सेकंड v का फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला भी लिख के आएंगे ना तो भी मार्क्स मिलते हैं. y1 का कोएफिशिएंट प्लस है, प्लस y2 का माइनस है, इससे माइनस y2 का. f ऑफ x अपॉन w तो रहेगा ही रहेगा. वैल्यू रखिए माइनस व्हाट इज y2 sin 2x. f ऑफ x, एग्जांपल में f ऑफ x कितना दिया है? sec 2x. एग्जांपल में f ऑफ x sec 2x दिया है और w 2 आया तो माइनस हाफ कॉमन sin 2x. And what is sec 2x is 1 by cos 2x. Sin by cos is tan. Sin by cos is tan. Sin by cos is tan. So what is integration of tan? Log of sec 2x divided by 2. Log of sec 2x by 2. x का कोएफिशिएंट से डिवाइड किया. And hence the answer is minus 1 by 4 log of sec 2x. Same v का वैल्यू y1 means cos 2x. f of x is एग्जाम्पल में दिया RHS sec 2x. w is 2. बोलो लास्ट समझे से करोगे 1 by 2 कॉमन cos 2x. It is 1 by cos 2x. So this cos get cancel, आपको 1 बन जाता है. And what is integration of 1 is x. In this way we get v. अभी u और v आप कहां पे रखोगे? yp में. u और v कहां पे रखोगे? yp में. Put in yp. बोलो what is yp? u cos 2x plus v sin 2x.
What is value of u? Minus 1/4 log of sec 2x. What is v? x/2 sin 2x. And last step is जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई. आपको रिस्पेक्टिव वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा. इस टाइप से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सम किया जाता है. एक सम फिक्स आता है तो जनरली एक सम होमोजीनियस का आता है. देखिए यहां पे होमोजीनियस आया नहीं है. अभी ये जो सम है एप्लीकेशन का सम है, ये सब एप्लीकेशन का है. तो आप में से कुछ बच्चों को ये सब मुझे करके देना है. थोड़ा सा माइक का सेल बैटरी चेंज करता हूं. ओके तो बच्चे लोग मैं ये सम अभी लेता हूं. ये जो एप्लीकेशन का सम है अभी लास्ट 1-2 साल पहले निकाल दिया था. पता नहीं अभी क्यों पूछ रहे. तो जिनको जिनको करना है मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है रेगुलर वीडियो लेक्चर्स में. जिनको करना है वो करना चाहिए. अभी मैं ये सम आपको करके दिखाता हूं. अच्छा समय कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं. तो ये सम में हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है. यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशन आपको ये आंसर लाना है. यूजिंग दिस कंडीशन आपको ये आंसर लाना है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आई स्टार्ट विथ दिस इक्वेशन. हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन से शुरू करेंगे. फर्स्ट स्टेप गिवन ei d square y by dx square minus py is equal to minus w by 2 x square. हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट मस्ट बी 1. आई डिवाइड बाय ei. डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट मिल जाता है बच्चों. सी एफ पी आई से सम आएगा आगे. तो इट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस पी बाय ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय ई आई. नाउ व्हाट इज पी बाय ई आई, एन स्क्वायर. बराबर है. तो यहां पर मैं एन स्क्वायर यूज करने लगा. तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर वाई। अभी आंसर में ई आई नहीं आता, तो ई आई की जगह पर आप यूज करोगे पी बाई एन स्क्वायर। तो यहां पर आएगा माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर। व्हाट यू वेल ऑफ ई आई इज पी बाई एन स्क्वायर एज एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई ए आई। तो मैंने यहां से ई आई की वैल्यू रख दिया पी बाई एन स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, कैपिटल डी इज को डी बाई डी एक्स। आई रिप्लेस कैपिटल डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा बच्चों लोग डी स्क्वायर वाई माइनस एन स्क्वायर वाई इज माइनस डब्ल्यू बाई टू, एन स्क्वायर ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर बाय पी। इस टाइप से आपको मिल जाता है। अभी y इज कॉमन इंटू y इज माइनस डब्ल्यू एन स्क्वायर बाय टू पी कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। सो इट इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको सी एफ पी आई मालूम है कैसे निकालना है? स्टेप नंबर सेकंड, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। बड़ा समय बच्चे लोग जिनको आता है वही करो, जिनका प्रैक्टिस है। तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज जीरो, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। डी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो व्हाट इज सी एफ? वाई सी इज इक्वल टू रियल नंबर से सी वन ई रेस टू प्लस एन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एन एक्स। रियल नंबर है फर्स्ट केस, सी वन ई रेस टू एन एक्स प्लस सी टू रेस टू माइनस एन एक्स पी आई। नाउ सेकंड पार्ट इज हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी आई। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी आई? To find pi 1 by f of d operates on f of x. बोलो f of d is d square minus n square. f of d is d square minus n square. And what is f of x is minus w by n square by 2p into x square. Constant बाहर लेना, minus w n square by 2p constant बाहर, 1 by डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन एक्स स्क्वायर। अभी शॉर्टकट टाइप के कांस्टेंट टर्म इज कॉमन। शॉर्टकट टाइप 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेट्स ऑन पॉलिनोमियल, तो माइनस एन स्क्वायर इज कॉमन। तो आ जाएगा ये माइनस एन स्क्वायर बाहर लिया तो माइनस डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस ऑपरेट्स ऑन एक्स स्क्वायर। माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो डी स्क्वायर बाय माइनस एन स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई करो, एन स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, डब्ल्यू बाय 2p, डब्ल्यू बाय 2p। और ये क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दिस ऑपरेट्स ऑन एक्स स्क्वायर। 1 माइनस वाई आता है, नीचे क्या आता है 1 माइनस वाई। अभी फॉर्मूला कौन सा आता है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन 1 माइनस वाई? जब नीचे माइनस होगा तो सारे प्लस और y का पावर बढ़ते जाता है, दिस इज द एक्सपांशन। तो y रिप्लेस बाय डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, y रिप्लेस बाय डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, w बाय 2p 1 प्लस डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस ऑपरेट्स ऑन एक्स स्क्वायर। एक्स का पावर 2 है, इसे वाई स्क्वायर तक लिया। अभी आप मल्टीप्लाई करो, w बाई 2p 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी रेस टू 4 बाई दिस इज 0, 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0।
4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। कुछ लोगों को डिटेल लिखना है तो लिखता हूं, लेकिन वो 0 आता है। d⁴ बाय n⁴ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों लोग w/2p, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, 2 बाय n² प्लस 0, एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव 2 आता है। इन दिस वे वी गेट pi, and what is the last step? General solution is CF plus pi. So y is, what is CF? C1 e raised to nx plus C2 e raised to minus nx plus w by 2p, it is x square by 2 by n square. मैं डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं, मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं। अगर हमने डिफरेंशिएशन किया w/2p x स्क्वायर प्लस 2 by n स्क्वायर, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज dy by dx? c1 कांस्टेंट एज इट इज, व्हाट डेरिवेटिव e raised to nx? e raised to nx into n प्लस c2 एज इट इज, e raised to minus nx का डेरिवेटिव e raised to minus nx into minus n plus w/2p constant as it is, and derivative of x square is 2x, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इन दिस वे वी गेट इक्वेशन से 2, इस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 लेंगे। नाउ यूज इनिशियल कंडीशन, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, यूज इनिशियल कंडीशन। Use initial condition. What is given? Initial condition, जिनको करना वही करना, ये सम at x equal to 0. What is y and dy by dx? What is y and dy by dx? और ये आपको एग्जाम्पल में दिया है, आपको एग्जाम्पल दिया है। y और dy by dx कितना दिया है? 0 when x equal to 0, तो यहां पर y0 एंड x0 आपको ये यूज करना है। तो इक्वेशन 1 में रखिए बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, तो क्या होगा बच्चों लोग? y की जगह पर 0, c1 e raised to 0 is 1 प्लस c2 e raised to minus 0 is 1 प्लस w by 2p 0 प्लस 2 by n स्क्वायर, तो आ जाएगा ये 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस w by 2p इंटू 2 by n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस w by p n स्क्वायर, इस इक्वेशन नंबर 3 लोगे, प्लस का बन जाएगा माइनस। अगेन बाय इक्वेशन 2, आप 2 में रखना, dy by dx 0 है, c1 e raised to 0 is 1 into n प्लस c2 e raised to minus 0 is 1 into minus n, और एक से 0 मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू c1n प्लस c2 माइनस n, तो n से डिवाइड करो, डिवाइड बाई n, डिवाइड बाय n, तो c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन 3 4 यूज करके c2 फाइंड करो, सॉल्व फॉर c1 एंड c2, तो आप 3 प्लस 4 करिए, 3 प्लस 4, c1 प्लस c1 2c1, c2 गेट कैंसल and it is minus w by p n square. So what is c1 is minus w by 2 p n square, this is c1, and by equation 2, by equation 4, c2 is equal to c1, c2 is equal to c1, this implies c2 also
माइनस डब्ल्यू बाई 2p(n²). अभी C1 C2 आपको y पूछा या dy बाई dx पूछा है वो देखना एग्जाम्पल में, तो जो भी पूछा है उसमें आप वैल्यू रख देना चाहिए। तो क्वेश्चन में उन्होंने y पूछा गया है, तो y आपको दिखाई दे रहा है, ये y, C1 C2 रख दो। सो व्हाट इज द इक्वेशन? पुट इन 1, पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा 1 में रखोगे तो ओके। अभी आप यहां पे रखो C1 C2। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? व्हाट इज C1 इज माइनस w बाय 2p(n²) into e raised to nx plus C2 is minus w by 2p(n² into e raised to minus nx plus w by 2p plus w by 2p and it is x² plus 2 by n²। अभी आपको कौन से फॉर्मेट में आंसर पूछा है वो फॉर्मेट में लिख लीजिए। आपको आंसर जो पूछा है ये w बाई 2p कॉमन है, w बाई 2p कॉमन है, तो यहां से w बाई 2p कॉमन दो बच्चे लोग, w बाई 2p इज कॉमन, तो w बाई 2p क्या कॉमन लिया तो e रेज टू nx अपॉन n², w बाई 2p इज कॉमन माइनस e रेज टू माइनस nx बाई n², माइनस लिया तो माइनस भी आएगा कॉमन, बाद में w बाई 2p कॉमन है तो इट इज x² प्लस 2 बाई n²। इन दिस वे वी गेट द आंसर। तो बच्चों एप्लीकेशन का समय मतलब शेप का ही समय, खाली नोटेशन थोड़ा अलग है, मैंने आपको इतना बताया, जितना हो तो उतना करो। नेक्स्ट, ये सम में क्या दिया है? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 फर्स्ट स्टेप, it is Legendre's homogeneous differential equation. What is the method? We replace 3x plus 1 is equal to e raised to z. 3x plus 1 equal to e raised to z. Taking log on both sides, 3 substitution आए तो 4 log of 3x plus 1 is z. Log of 3x plus 1 equal to z. What is the term? 3x plus 1 dy by dx. आप क्या रखोगे बच्चे लोग? 3 raised to 1 dy. What is 3x plus 1 bracket square? d square y by dx square. ये आएगा 3 square into d minus 1 into y, क्योंकि 3x plus 1 dy by dx रखेंगे और 3x plus 1 d square by dx square. What is capital D? It is d by dz. ये 4 सब्स्टिट्यूशन हर बच्चे को आना चाहिए। सेकंड स्टेप, आपको वैल्यू रिप्लेस करना है। पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म? ये वैल्यू आएगा 3 स्क्वायर d माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3। व्हाट इज 3x प्लस 1 डिवाइड dx इज 3 raised to 1 dy प्लस 9y और x निकालना है। यहां से x की वैल्यू कितना आएगा? पूरा एग्जांपल आपको z में कन्वर्ट करना है, पूरा एग्जांपल z में। तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 3 स्क्वायर d इंटू d माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 एज इट इज। What is 3x plus 1 divided by dx is 3 raised to 1 dy plus 9y is equal to x। यहां से x कितना आएगा? 3x is equal to e raised to z minus 1।
So what is x is 3 raised to z minus 1 by 3. What is x is e raised to z minus 1 by 3. पूरा एग्जांपल से मैंने z में कन्वर्ट किया. Now simplify. 9d into d minus 1 minus 9d plus 9 into y e raised to z minus 1 by 3. ये क्या होगा बच्चे लोग? 9d स्क्वायर माइनस 9d प्लस 9 इंटू y इज इक्वल टू e रेस टू z माइनस 1 बाई 3. ये आता है 9d स्क्वायर माइनस 18d प्लस 9 इंटू y इज इक्वल टू e रेस टू z माइनस 1 बाई 3. 9 इज कॉमन तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई ई रेस टू जेड माइनस 1 बाई 3. तो बोलो क्या होगा? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज ई रेस टू जेड माइनस 1 बाई 27 एंड दिस इज फर्स्ट स्टेप. एफ ऑफ जेड में काउंट किया. एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जेड में आ रहा है तो ये सब में थोड़ा कैलकुलेशन चैलेंजिंग है. अभी नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 सी एफ फाइंड करना है. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन? एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0. व्हाट इज एफ ऑफ डी? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज 0. d is equal to 1 1. So what is complementary function is? yc is c1z plus c2 e raised to 1z. And what is z is? What is substitution? x में कन्वर्ट करो. What is z is? log of 3x plus 1. Log of 3x plus 1 plus c2. And what is e raised to z is? 3x plus 1. In this way, we get C up. In last step, we find PI. In last step, we find PI. Step number 4. What is formula for PI? 1 by f of d. That is d square minus 2d plus 1. And f of z matlab e raised to z minus 1 by 27. तो 1 by 27 constant. 1 by d square minus 2d plus 1 operates on e raised to z minus 1 by d square minus 2d plus 1. 1 को हम क्या लिखोगे? e raised to 0z. 1 is e raised to z. अभी d की जगह 1 रखना है तो ये d minus 1 का स्क्वायर है. 1 by 27. It is 1 upon d minus 1 का स्क्वायर e raised to z. d के बाद 0 रखो. I replace d is equal to 0. e raised to x z का कोएफिशिएंट. जब भी आप 0 रखोगे तो नीचे क्या आएगा? 0 minus 0 plus 1. ये आएगा 1 by 27. फॉर्मूला क्या होता है? x raised to z raised to r. r means 2 upon 2 factorial e raised to z. और ये आ जाएगा -1. x raised to r upon r का r फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है. r is 2 तो z स्क्वायर upon 2 फैक्टोरियल. 3 होता तो z के upon 3 फैक्टोरियल लेते हैं. सिंप्लीफाई करो. 1 by 27. z मतलब log of 3x plus 1 का स्क्वायर by 2. e raised to z is 3x plus 1 minus 1 by 27. z is log of 3x plus 1. e raised to z is 3x plus 1 only. And hence we get pi. And what is the last step? General solution is CF plus pi. Step number 5. बच्चों लोग बहुत अच्छा समय है. पूरा M3 लेंदी है बच्चों लोग, आपको पढ़ना पड़ेगा.
इन सेम में तो ठीक है, लेकिन एंड सेम में तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चे लोग, बड़े यूनिट्स है। नाउ दिस सम, ये जो सम है ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी आ सकता है या जनरल मेथड से भी आता है। तो जनरल मेथड का सम है तो हम लोग क्या करेंगे, वी रिप्लेस कैपिटल डी को डी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, डी स्क्वायर वाई प्लस 4 डी वाई प्लस 3 वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू वाई is e raised to x. First step, CF is, for that auxiliary equation is, बोलो d square plus 4d plus 3 is 0. So what is the factors? D equal to minus 3 minus 1. D is equal to minus 3 minus 1. So what is complementary function is? YC is C1 e raised to minus 3x प्लस C2 e raised to minus 1x. CF तक तो आ जाता है सबको, बट इन सेकंड स्टेप व्हाट इज PI? 1 by f of d ऑपरेट्स ऑन f of x. बहुत कम बच्चों को ये आएगा, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 e raised to x. शॉर्टकट टाइप नहीं आएगा, e raised to x नहीं है जनरल मेथड। तो मैं क्या करता हूं, इसके फैक्टर्स निकालता हूं, d प्लस 1 d प्लस 3 एंड e raised to x फैक्टर्स 3 into 1। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन, 1 अपॉन d प्लस 1 d प्लस 3 e raised to x। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 लेता हूं, यहां पे माइनस 1 लेता हूं। तो क्या होगा, d प्लस 3 माइनस d माइनस 1 2 आता है, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो खाली 2 आएगा, हमें तो 1 होना चाहिए, इसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अभी सेपरेट करिए, अभी आपको सेपरेट सम करना है। जब आप सेपरेट करोगे 1 अपॉन d प्लस 1 e raised to x माइनस 1 अपॉन d प्लस 3 e raised to x। अभी फॉर्मूला मालूम है, 1 अपॉन d प्लस m का फॉर्मूला, व्हाट इज d प्लस m f ऑफ x, प्लस होगा तो माइनस करिए, e raised to minus mx, e raised to mx f ऑफ x dx। तो क्या हो जाएगा, 1/2 e raised to minus 1x, e raised to 1x, ये आ जाएगा e raised to x dx माइनस e raised to minus 3x, e raised to 3x इंटू e raised to x dx। बहुत कम बच्चों को समझ में आएगा। अभी यहां पर मैं क्या करता हूं, एक जनरल फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to f of x into f dash, इट इज सिंपली e raised to f of x। जब इंटीग्रेशन में e का जो पावर है उसका डेटो अगर एडजस्ट हो रहा है तो आंसर e का पावर आता है। तो e raised to मतलब आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली e raised to x, क्योंकि इसका डेटो दिखाई दे रहा है। तो 1/2 e raised to minus x, आंसर ऑफ दिस टर्म इज सिंपली e raised to x माइनस e raised to minus 3x, e raised to 3x is written as e raised to x, e raised to x into e raised to x, e raised to x dx। मैं e raised to x over t रखता हूं, I replace e raised to x is equal to t। So what is the derivative, e raised to x dx is dt। तो ये आंसर क्या आएगा बच्चों लोग, 1/2 एज इट इज, e raised to minus x
ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस 3x, तो ये आएगा t इंटू टी स्क्वायर, और ई रेस टू एक्स डी एक्स इज डी टी, और ये ई रेस टू टी, देखो ना, टी स्क्वायर, ई रेस टू एक्स डी एक्स इज डी टी, ई रेस टू टी। अभी बर्नौलीज रूल से आएगा, ये कैसे आएगा बच्चों लोग, बर्नौलीज रूल। व्हाट इज बर्नौलीज रूल, ये जो पावर है इसे आप u लीजिए और इसे v। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, बर्नौलीज रूल, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा t टी स्क्वायर u ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन, ई रेस टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन, ई रेस टू टी प्लस 2t का डेरिवेटिव 2, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन, ई रेस टू टी। बर्नौलीज रूल, डेरिवेटिव बढ़ेगा, इंटीग्रेशन बढ़ेगा। अभी 1/2 ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स, अब यहां पर t की जगह पर ई रेस टू एक्स रखो, तो ई रेस टू 2x हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस 2 ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस 2 ई रेस टू एक्स, मल्टीप्लाई करो 1/2 थ्रू आउट बाहर, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स, मल्टीप्लाई करो ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 ई रेस टू माइनस 2x, ई रेस टू एक्स, माइनस प्लस माइनस 2 ई रेस टू माइनस 3x, ई रेस टू एक्स। अभी यहां पर ये और ये टर्म सेम है, हट जाएगा, और आंसर क्या रहेगा, अब 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 2 कैंसल, ई रेस टू माइनस 2x into e raised to x, 1 up or 2 cancel, minus e raised to minus 3x, e raised to x. In this way we get pi, and last step is general solution is CF plus Sppu. इस टाइप से आंसर आता है। काफी टफ समय, वेरिएशन से अगर देते तो वेरिएशन से भी कर सकते ये सम, अच्छा सम था। जिनको लिखना हो लिखना चाहिए। ये सम सिमेट्रिकल साइमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट टू रेशियो लेंगे। टेक फर्स्ट टू रेशियो, dx अपॉन सिंपल सम होती है z इक्वल टू dy बाय एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैंने दो रेशियो के लिए, ताकि यहां पर j की टर्म कैंसिल कर सकते हैं और dx के साथ x की टर्म लेना, dy के साथ y की टर्म लेना, आपको एक आंसर मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dy। तो इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑन इंटीग्रेशन। तो क्या होगा बच्चों लोग, एक्स स्क्वायर dx इज वाई स्क्वायर dy। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाई 3। व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज y cube by 3 and constant is c1 cube by 3. Suitable constant, multiply by 3, so it is x cube is equal to y cube plus c1 cube. ये आंसर 1। सेम आपको और दो रेशियो लेना है, करेक्ट, दो आंसर्स होते हैं स्टेप सेकंड। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और लास्ट भी ले सकता हूं या लास्ट टू भी ले सकता हूं। टेकिंग लास्ट टू रेशियोज, सो इट इज dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, dz बाय
y square x square. So dear student, x square get cancel. dy के साथ y के टर्म्स आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा y स्क्वायर dy is equal to z square dz. Now it is variable separable form on integration. So it is y square dy is equal to integration of z square dz. तो ये आएगा बच्चों लोग y क्यूब बाई 3, it is z क्यूब बाई 3 and c2 क्यूब बाई 3, suitable constant. So multiply by 3, multiply by 3 and we get answer. That is y cube is equal to z cube plus c2 cube, and 1 and 2 gives general solution. 1 and 2 gives जनरल सॉल्यूशन. इस टाइप से ये 3 सम सॉल्व होते बच्चों. ये साइमल्टेनियस का सम भी हर साल आता है, कंपल्सरी आता है. अभी ये जो सम है ये एप्लीकेशन का सम है. मुझे एप्लीकेशन के सम में आपको देखना है तो मैंने ऐप में सारे सम करके दिए. एप्लीकेशन के सम्स, एप्लीकेशन के सम सारे मैंने करके दिए. बस मैं 2 ही सम्स लेता हूं फर्स्ट यूनिट. अभी सेकंड यूनिट के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लेने वाला हूं. ओनली यूनिट 1 के पार्ट है, इन सेम पार्ट के लिए. ओके, थैंक यू सर.